So today we are going to discuss that exercise of chapter States of Matter, which is your chapter 4. So everyone open page number 48. Ma'am, it is disconnection. Page number 48. So we will start with the first question. Choose the correct answer. So as usual, I will ask you a question and you will give your answers in the chat box. Okay. And if you have any doubt, we will discuss your doubts in the end. Okay. So the first question is the process of converting a substance from solid to liquid is called. You have four options: melting, freezing, condensation, and evaporation. The process of converting the substance from solid to liquid. जब एक कोई substance solid से liquid में change होता है, what is that process called? Yes, it's melting. Very good. So tick option A, melting. Next is, which of the following is an example of solid state of matter? आपको solid state identify करनी है. Chair, milk, oxygen और water. Very simple. Yes, it is in chair. Very good, because milk is a liquid, oxygen is a gas, and water is also a liquid. So chair is the only option in which the state of matter is in solid state. The next is the decrease in size of matter on cooling is called. When cooling is provided and the size of matter decreases, what is that thing? That phenomena is called. Is it contraction or expansion or evaporation or condensation? Yes, it's contraction. Contraction को हम define ही ऐसे करते हैं. Decrease in the size of matter when cooling is provided. Okay, expansion इससे opposite है. When heat is provided to the matter and its size increases. Evaporation and condensation are two different things. Next is, which of the following is a chemical change? एजिंग. ऑप्शन सी इज एजिंग. बिकॉज बच्चे टीयरिंग जब हम किसी पेपर को फाड़ देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. आफ्टर आंसर क्या था? आफ्टर अ चेंज न्यू सब्सटेंस शुड बी फॉर्म्ड. ठीक है, टीयरिंग में उसका साइज चेंज हो जाता है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज. Okay, melting is a physical change because state of matter changes. Freezing is a physical change because state of matter changes. But in aging, ये तो ये irreversible है. ठीक है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन में भी चेंजेस आते हैं. तो एजिंग इज द केमिकल चेंज. Next is, on cooling a substance, the speed of its particles
जब कोई सब्सटेंस कूल होता है, उसको ठंडा करते हैं, तो उसकी पार्टिकल्स की स्पीड पे क्या इफेक्ट आता है? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, बिकम जीरो। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सेम रहती है, या जीरो ही हो जाती है? तो इट डिक्रीजेस। वेरी गुड। ऑन कूलिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, कम हो जाती है उसकी स्पीड। वेरी गुड। Okay, so next question is fill in the blanks. First sentence is, listen carefully. There is a dash force of attraction between the particles of gases. गैस के पार्टिकल्स के बीच में कैसा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आपको पता है जो गैस में उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, वो बहुत ही हाई स्पीड से इधर उधर मूव करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? इट इज वीक। वेरी गुड, इट इज वीक। और यू कैन, जो बच्चा ये जो लिख रहा है नेग्लिजिबल इज, नेग्लिजिबल इज ऑल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आप वीक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ डैश ऑन हीटिंग। सॉलिड हीट करने पे डैश पे चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डैश मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी हो जाती है कि सॉलिड इसमें चेंज हो जाता है हीट करने पे। सो इन द फर्स्ट ब्लैंक इट शुड बी लिक्विड। A solid changes into a liquid. Liquids जो लिख रहे हैं ना, तो हमें S नहीं डालना बिकॉज में A लिखा हुआ है। वेरी गुड। बिकॉज ऑफ फास्ट नहीं बच्चे हम लिखेंगे, जो बच्चे फास्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड, क्योंकि उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज। फास्ट आपको समझ आ रहा है कि फास्ट हो रही है, बट वो सेंटेंस के साथ सही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, क्योंकि उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। अब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जब सॉलिड है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, वो मूव नहीं कर सकते, पर जैसे उनको हीट मिलती है उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज होती है। गुड। नेक्स्ट इज डैश इज insoluble in water. See, here is the example. Here should be any example. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो जो कि जो भी सब्सटेंस पानी में इनसॉल्युबल है। जैसे आप सब सैंड लिख रहे हो, मे बी यू पीपल हैव द ओल्डर बुक्स, तो इन ओल्डर बुक्स यू हैव सैंड ऑलरेडी रिटन ऑन इट, सो सैंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप कोई और भी लिख सकते हो। आकाशदीप, वी कैन नॉट राइट ऑयल because oil is a liquid, and in case of liquid we use the word immiscible, not insoluble. Okay, insoluble is used for solids. Okay, so you people can write sawdust, ठीक है, sand, ठीक है। Next is, yes, rice भी ठीक है। Melting of ice cream is a dash change. Now melting of ice is what kind of change here? Could you mute yourself? Yes, physical change. So melting of ice cream is a physical change. क्यों physical change है? क्योंकि अगर जो आइसक्रीम मेल्ट हो गई है उसको दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा तो वो फिर से सॉलिड हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। So next we have true or false and also correct the false statement. ठीक है, हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ के ये पता करना है कि whether the statement is true or false, and if it is false we also have to provide the correct statement. ठीक है, correct बतानी है। So the first is, okay, we skipped the last one.
So chemical changes are generally dash. Chemical changes कैसे होते हैं? Chemical changes are irreversible. Very good. Chemical changes are generally irreversible. Irreversible means जो कि दोबारा पहली वाली स्टेट में नहीं आ सकता है. Okay. So let's read the first statement. The way particles are packed in a substance decides the state of matter. अब देखो इसमें अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, अगर वो फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है और वो करेक्ट स्टेटमेंट मैं आपसे पूछूंगी. तो हैंड रेज करके रखेंगे आप जो जिनको पता है करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. Lovely, please don't send the answer of all the 6 sentences. Kavya, you too. जो पूछा है, जिसका पूछा है उसका ही आंसर दो only. So the way particles are packed in a substance decides the state of matter. This statement is true. This statement is absolutely true because हमने इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ा है. पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है किसी मैटर में वो कैसी होती है, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर उस पर डिपेंड करती है. ओके. अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड है तो वो सॉलिड है, थोड़ा सा लूज है देन इट इज लिक्विड. अगर वो बहुत ही ज्यादा लूज है, पार्टिकल्स बहुत दूर है, देन इट इज गैस. Next is the conversion of solid into a gas on heating is called expansion. Conversion of solid into a gas on heating is called expansion. क्या ये expansion है? Misbah, unmute yourself and give me your answer. Ma'am, false. False है. And what should be the correction according to you? Ma'am, the conversion of solid into a liquid on heating is called expansion. Expansion बोलते हैं उसको. I think expansion is that process when heat is applied to a solid and its size increases. Ma'am? Ma'am, I know. Misbah? Ma'am? Yes. Subhanshu? Ma'am, the conversion of a liquid into a solid on cooling is called expansion. Excuse me, ma'am. सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में कूल करने पे. कूल करने पे होगा कभी सॉलिड लिक्विड में चेंज? नहीं होगा. ओके. तो मिसबा आप सुन लो ध्यान से, ठीक है. संचिता? Yes, ma'am. Posed Of a solid into a liquid on heating is called melting. yes, it's melting. सॉलिड को जब हीट करके लिक्विड में चेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. ठीक है. जब आइस मेल्ट होती है ना तो वो पानी बन जाता है. आइसक्रीम मेल्ट होती है तो वो लिक्विड आइसक्रीम बन जाती है. ओके. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो व्हाट यू विल डू, आप जहां पे गैस लिखा है गैस को कट करके लिक्विड करोगे एंड लास्ट में जहां पे एक्सपेंशन लिखा है वहां पे कट करके आप मेल्टिंग करोगे. ओके. Clear? Okay, next is in the solution of sugar and water, sugar is the solvent. Okay, Jabjeet, unmute yourself. Jabjeet. Yes, Jabjeet, give your answer. Excuse me, ma'am. मैम, ये जो आपने सेकंड वाली स्टेटमेंट सही कराई है उसके आगे अब ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है? सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है. अभी हम थर्ड की बात कर रहे हैं. लेट मी आस्क फ्रॉम भूमिका. जबजीत हमने Yes, ma'am.
है आपकी, आप मे बी देयर सम प्रॉब्लम। यस मैम। भूमिका आंसर बताओ थर्ड का और रीजन भी बताओ। In the soluble of sugar and water, sugar is just. Ma'am, it's true. Sugar is शुगर एंड वाटर solvent. सॉल्वेंट, ट्रू है फॉल्स है? मैम ट्रू है। ये ट्रू है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू इट इज ट्रू। यजत, This statement is false. yes, and what is the correction according to you? Ma'am, it should be in the solution of sugar and water. Sugar is, ma'am, solvent should be cut and it should be solute. Sugar is the solute. Yes, this is correct. So I told you that in a solution, the substance which is in larger amount, in which any other thing is dissolved, that substance is solvent. जैसे अब देखो sugar and water का solution है, water में हम sugar dissolve करेंगे, तो water यहाँ पे solvent है, sugar solute है. Okay. Okay, so next is nitrogen is fairly soluble in water. Give your answer. Okay, let me ask from Harshika. Harshika, give your answer and okay, first you give your answer. Nitrogen is insoluble in water. Ma'am, it's false. It is false, and you also told me the correction. What is the correction? Speak again. Nitrogen is insoluble in water. Nitrogen is insoluble in water. Nitrogen is a gas, okay, and it is insoluble in water. So आप क्या कट करोगे? Fairly soluble को कट करके यहाँ पे insoluble लिखोगे. Okay. So next is physical changes are mostly reversible. संचिता से तो पूछ लिया है, या जैसे भी जसलीन, unmute yourself. Ma'am, yes. Ma'am, it's true. It's true. Physical changes are mostly reversible. Physical changes reversible होते हैं. Next is only solids expand on heating. का आंसर मुझे बताएंगे शुभांशु. False. False. And what is the correction here? Only को कट करके आना liquids and gas. Yes, ठीक है. So this statement is false because यहाँ पे क्या लिखा है कि only solids expand on heating, but solid ही नहीं है, liquid और gases भी expand होते हैं heat करने पे. Okay. Although उनकी जो rate of expansion है, उनका जो nature है वो different होता है, but expand करते हैं. Okay. So let's. Excuse me. इसको स्विच ऑफ कर दे और चार्जिंग पे। मैम, आपने 6th क्वेश्चन क्या बोला था? फिर से रिपीट कर दो, फॉल्स स्टेटमेंट वाला. Fifth. मैम, 6th जो आपने बोला है फॉल्स है, उसमें फॉल्स के वो रिपीट कर दो. को आप कट करके लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आना है प्रॉपर. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये आना है. मैम, और 5th स्टेटमेंट ट्रू है ना? 5th ट्रू है. यस. थैंक यू मैम. वेलकम. सो नेक्स्ट इज पुट एन ऑड वन आउट एंड गिव रीजन. रीजन भी देना है. सो फर्स्ट इज fixed shape, closely packed particles, rigid, indefinite volume. Odd one out कट निकालना है आपको. आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड है. Fixed shape, closely packed particles, rigid, indefinite volume. ओके, जसनूर ने आंसर दे दिया है, भारती ने भी दे दिया है.
बाकियों का नहीं आया. ओके, लेट मी टेल यू. यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो है इनडेफिनिट वॉल्यूम. ऐसा क्यों है? देखो, फिक्स्ड शेप सॉलिड से रिलेटेड होती है, सॉलिड की होती है फिक्स्ड शेप. क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स भी सॉलिड के होते हैं, रिजिड भी सॉलिड होते हैं. उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. यहाँ पर क्या लिखा है? इनडेफिनिट. इनडेफिनिट वॉल्यूम सॉलिड का नहीं होता है. तो बाकी तीनों सॉलिड से रिलेटेड है, ये सॉलिड से रिलेटेड नहीं है. दिस इज व्हाई दिस इज ऑड वन आउट. तो इसका आप रीजन भी ऐसा ही दोगे. Indefinite volume is the property of gases, but rest of all the properties are of the properties of solids. Okay? ये मैं आपको रिटर्न आपका पीडीएफ में इसका भेजूंगी बैक एक्सरसाइज का, वहां से भी लिख सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, डाइजेशन. ये सेकंड का आंसर पहले ही लिख रहे हो आप. वेरी गुड. डाइजेशन. ठीक है. तो इसका रीजन क्या है? देखो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग ये तीनों फिजिकल चेंजेस हैं, बट डाइजेशन फिजिकल चेंज नहीं है. डाइजेशन इज द केमिकल चेंज. ओके, तो रीजन इसका ये है कि डाइजेशन इज केमिकल चेंज, रेस्ट थ्री आर फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट इज शुगर, सैंड, chalk, sawdust. वेरी इजी. Definitely it is sugar because sand, chalk and sawdust insoluble होते हैं water में. Sugar is soluble. Next is burning, cooking, growth and freezing. Freezing, this is also very easy because burning, cooking and growth ये chemical changes है, irreversible है. Freezing is reversible as well as a physical change. ठीक है, तो freezing is the answer here. Next is expansion, contraction, reduced size, cooling. So here the answer is expansion because contraction और size reduce होना are related to cooling, but expansion का बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है, वो इससे रिलेटेड नहीं है. सो दिस आंसर इज एक्सपेंशन हियर. ओके, सो बच्चे, हियर आई वांट टू शो यू समथिंग. इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट जो लिक्विड होते हैं वो कूलिंग पे एक्सपैंड करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना. तो जब नीत ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने मुझे पिक्चर सेंड की जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. Rupinder ma'am, please allow me to share screen. Okay, ma'am. Done, ma'am. Thank you, ma'am. So this is what experiment came out to be. Bottle उसने फुल फिल कर दी थी और उसके ऊपर लूज रख दिया था उसका कैप. तो जैसे जैसे लिक्विड फ्रीज होता गया, ठीक है, उसका साइज बढ़ता गया आइस का, और आइस बॉटल से बाहर भी आ गई, और ऑफ कोर्स उसका जो लिड है वो तो साइड पे गिर गया क्योंकि वो लूज था. ओके, तो आप भी करके देखा करो, बहुत फन एक्सपेरिमेंट होते हैं ये. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कंसेप्ट चेक्स. पेज नंबर 43. भार्गवी सेल्स उसने भी किया है. वेरी गुड. ओके, ऑन पेज नंबर 43 फिल इन द ब्लैंक्स. आप आंसर्स लिखोगे चैट बॉक्स में. द अरेंजमेंट ऑफ डैश डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर. किसकी अरेंजमेंट होती है? Yes, it's the arrangement of particles, but you need to write the correct spelling. Particles. Yes, हमने molecules भी लिख सकते हो. Molecule is also correct. Next is condensation is the conversion of a dash into dash on cooling. Condensation में कौन सी स्टेट किस स्टेट में चेंज होती है? This should be
वेरी इजी फॉर यू बिकॉज ये आपने 4th में भी पढ़ा है. Yajat, what are you doing? Are you singing? मैम मैं ना, मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, वो मैम खुद ही बोल के मैम समझ रहा था मैम, वो मैं देख रहा था मैम, सिंग नहीं कर रहा. Okay, okay. Yes, so conversion of a gas into liquid. ये आपने 4th में भी पढ़ा है. Good. So next is particles of a substance come dash on cooling. जब कूल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो पार्टिकल्स क्या कैसे होते हैं? कम डैश. पार्टिकल्स कम क्लोजर, पास आ जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड कम हो जाती है कूल करने पे. सो दे कम क्लोजर. वेरी गुड. नेक्स्ट इज अ डैश लिक्विड डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन वाटर. कौन सा लिक्विड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या कहते हैं? A seed oil floats on water because it is lighter in weight than water. इसलिए वो फ्लोट करता है. बच्चे यहाँ पे हम soluble वर्ड यूज नहीं करते, मैंने अभी भी आपको बताया है. We use the word miscible. Miscible and immiscible for liquids, soluble and insoluble for solids. तो मिसिबल के स्पेलिंग भी लिखने हैं आपने, MISCIBLE. नेक्स्ट इज अ डैश इज द सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस हम डिसॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड मिसबा. यस. सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं सल्यूट. SOLUTE. नो मिसबा, मिसिबल नहीं है, अब सल्यूट है. चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है. नेक्स्ट इज हीटिंग इंक्रीजेस द डैश ऑफ पार्टिकल्स. हीटिंग से क्या इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल्स का? Yes, so students are writing movement. Movement भी इंक्रीज हो जाती है. आप स्पीड भी लिख सकते हो. हर्षिका साइज नहीं इंक्रीज होता. साइज एक्सपेंशन के टाइम सब्सटेंस का इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स का वो भी नहीं इंक्रीज होता. तो मूवमेंट और स्पीड. गुड. Excuse me, ma'am. 46. Page number 46. Choose the correct answer. A change in which no new substance is formed is called chemical, physical, irreversible, all of them. In which no new substance is formed. Yes, it's option B, physical change. Next is the increase in size of a substance on heating is called contraction, alteration, Expansion. relaxation. It's option C, expansion. Expansion is the increase in the size of substance on heating. Next is the chemical change among the following is rusting of iron, आयरन को रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, tearing of paper, melting of wax or eating, breaking of glass. It is Drifting on fire. because a new substance is formed. Next is an irreversible change among the following is growth of a plant, boiling of water, drying clothes, melting ice. Irreversible change. Yes, option A, growth of a plant. Very good. Growth of a plant. बच्चे 3 का आंसर है ऑप्शन A, rusting of iron. अगर आपको कुछ मिस भी हो गया है, कंसेप्ट चेक का नहीं, बट मैं आपको बैक एक्सरसाइज का PDF डेफिनेटली सेंड करूंगी सोल्यूशन.
Now we have Ma'am, page number 46. ma'am 43. Who is this? Matter is anything that has mass and occupies space. ठीक है, ये हमने पहले है. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग. कोई भी स्पेस, कोई भी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस ली है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. नेक्स्ट इज मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. मास क्या होता है? जितना मैटर कंटेन होता है किसी भी सब्सटेंस में, वो उसका मास होता है. Contraction, contraction is the decrease in the size of matter on cooling, cooling पे. Expansion is completely opposite process on heating, increase in the size of matter. जब size increase हो जाता है. Immiscible liquid, pair of liquids which do not get mixed with each other. Example is oil and water. Water and oil कभी एक दूसरे में mix नहीं होंगे, so these are immiscible liquids. So miscible liquid, pair of liquids which get mixed with each other in all proportions. जो liquids पूरी तरह से mix हो जाते हैं, जैसे fruit juice है, juices एक दूसरे में completely mix हो जाते हैं. So these are miscible liquids. Okay. Now if you have any doubt, you can raise your hands. Good, just very good. Yes, Angel. मैम जो पेज नंबर 43 पे कंसेप्ट चेक है मैम, आप वो भी ग्रुप में भेज दो. बच्चे ऐसे है ना कि वो भेजे नहीं जा सकते. आपने लिखे नहीं है या आपका मिस हो गया कुछ? मैम एंजल, आपको मिस हो गया है तो आप किसी अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो. अदरवाइज यू कैन कॉल मी, मैं आपसे आंसर डिस्कस कर लूंगी. ओके. देयर इज नो अटेंडेंस. आई हैव टेकन योर अटेंडेंस. Excuse me, ma'am. यस. मैम जो मैम पे नंबर 48 पे जो प्रूफ ऑफ है मैम, वो आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? पेज नंबर मैम 48 पेज. बैक एक्सरसाइज तो बच्चे करनी है. मैम वो ट्रू फॉल्स मैम आप मुझे मैम आप ग्रुप में भेज दोगे? हाँ जी बच्चे, बैक एक्सरसाइज तो करनी है. और कौन सी ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हो आप? बच्चे, एनी अदर डाउट? एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम जो लिक्विड और गैस है मैम, ओनली वो ही एक्सपैंड होते हीटिंग पर? नहीं, सॉलिड भी होते हैं. तो सॉलिड भी. ओके मैम. मैम तो मैम 6 में हम सॉलिड को कट ना करें? सॉलिड को कट करना ही नहीं, आपने ओनली को कट करना है. ओनली को. ओके मैम. Only liquid and gas expand on heating. ओके मैम. Yes. एक्सक्यूज मैम, अब ये आपने जैसे मैम फिल इन द ब्लैंक्स में जो जो लिखवाया है मैम, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने लिखवाया